Good morning, children. How are you? I hope all you are well and fine. Today's video lecture will be for 8th class. This is the number of chapter is 1.3. Heaven on a stick, as per from the communicative English. Okay, so in this video lecture, we are going to discuss about the beginning of ice cream and which country first of all started ice cream. All these things we will discuss it, and before entering to this chapter, I request you, fatafat, you put your thumb onto the subscriber button as well as bell icon also. So anyway, let us discuss without wasting our time. Before going to this lesson, I would like to ask you a question: that how many of you want to take ice cream, and how many you want to know, and you have eagerness to know about ice cream? So especially when we go to marriage party and when we go to birthday party or some other feast, after having a meal, so we look here and there whether there is ice cream or not. So we think and we search. If we found nothing is there, that means the feast is not that much worthy. That is meaningless to attend the feast. As for a child, if a child stand or sit before you, so you put delicious food on one side and ice cream another side. So he would refuse the delicious food, at the same time he would take the ice cream. That is the nature of a child, as well as I told you, when we go to a party or a feast, so after having meal, we always search ice cream. Ice cream is very familiar now this day, and today we want to know that from where this ice cream has come. So in olden days, especially Romans, okay, they took some snow and mixed their fruit juice and honey, and then they began to take that as for ice cream. They began to eat that as for ice cream. Then after we see that Arabian as well as Persian, they also make something like this, and they say that name of the ice cream is sarbat. Now this day in India, we are also using the same name. So remember, sarbat has been derived out from that particular name to India also. ओके तो बच्चों, आइसक्रीम के बिना मैरिज पार्टी जो है आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको यदि कोई अच्छा खाना एक साइड में रख दे और एक साइड में आइसक्रीम रख दे, तो आप वो अच्छा खाना को छोड़ दोगे और आइसक्रीम खाने में लग जाओगे। ये स्वाभाविक बात है और इस प्रकार होता ही रहता है। ठीक है, आइसक्रीम के बिना कोई पार्टी का कल्पना करना भी मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये वी सी हियर द फर्स्ट आइसक्रीम दैट इज मेड इन इटली। ओके, दैट इज मेड इन इटली एंड द प्रिंसेस ऑफ इटली, ओके, हर नेम वाज कैथरीना, and she got married with a king, one who belonged to France. His name is Henry II. So as the princess, and she was going to the king palace, she took with her to her cook, and that cook also reached there. At the same time, there were many cook or many other person, one who have observed the making of ice cream and they develop a little bit, and that food, especially that ice cream, that was only the food of royal family. Okay, almost many years before before inventing of refrigerator, okay, the ice cream was quite popular, and that was the food of Nobel only. Okay, तो ये उस समय की बात है और 1533 की बात है। इटली का एक प्रिंसेस है जो क्या करती है,
फ्रांस का एक राजा के साथ उसका शादी होता है जिसका नाम है हेनरी सेकंड। जैसे वो शादी करती है और शादी करने के समय पर वो क्या करती है, अपने कुक को भी अपने साथ लेकर के जाती है। ओके, अपने कुक को भी अपने साथ लेकर के जाती है। वो इस वाले कुक को लेती है जिनको कि आइसक्रीम बनाना भली भांति आता था, बहुत अच्छी तरह से जो आइसक्रीम को बना सकते थे। अब वो वहाँ पे पहुँच जाते राजा के भवन में, और जैसे राजा के भवन में पहुँच जाए तो वहाँ और भी कुछ लोग होते हैं और सभी मिलजुल करके एक आइसक्रीम के बनाने का कई सारे नए नए मेथड को अपनाते हैं और बनाते हैं। लेकिन जैसे भी हो, लगभग लंबे समय तक आइसक्रीम जो है एक रॉयल फूड बन करके ही रह गया। आज की तारीख में तो सभी लोग उसको खाते हैं, लेकिन तब ये एक रॉयल फूड बन करके रह गया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम है, और ये डायरी मैन थे जिसका नाम है जैकब फ्यूसेल है। वो भी क्या करते हैं, कॉमर्शियल के लिए आइसक्रीम को मैन्युफैक्चर करना चालू कर देते। देयर वाज अ मैन हुज नेम वाज जैकब फ्यूसेल एंड ही वांटेड टू मेक द आइसक्रीम फॉर द कॉमर्शियल पर्पज, okay, for the commercial purpose, but that was something difficult. There was no freezer or there was no refrigerator, that how they can keep the ice cream. So you think there is a container, and in between and in the middle place there is a vacant place, and they put milk, cream, sugar, etc. And a side place, there is a side place, in that side place they put salt and ice. So when they open the container, then they see the things that was put there previous that was soft, but now that become ice cream. So in this way they were eating ice cream. तो आइसक्रीम को बनाते थे कैसे थे कि जो फ्लावर्स होते हैं या तो चीनी और साथ ही साथ मिल्क, क्रीम, ये सभी चीज़ को मिक्स करके कंटेनर में डालते थे। जो कंटेनर में बीच का तो पूरा भरा हुआ है और बाकी चारों साइड का होलो है, तो वो भरी हुई, मतलब जिस जगह पे बीच की जगह पर वो मिल्क और साथ ही साथ शुगर, क्रीम ये सब डालते थे, और साइड का जो चैम्बर है उस चैम्बर में वो क्या कर देते थे कि सल्ट और उसके साथ बर्फ़ को भी वहाँ पर वो डाल देते थे। तो इसी प्रकार से आइसक्रीम वहाँ क्या हो जाता था कि थोड़ा ठंड पकड़ता था और वो जो सॉफ्ट है आइसक्रीम के रूप में थोड़ा कड़क बन जाता था। ये तो था मतलब उन समय की बात है। लेकिन हम और एक बात को देखते हैं, मॉडर्न एज में जो है आइसक्रीम बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, ठीक है ना। आइसक्रीम बहुत ही पॉपुलर हो चुका है और ये आइसक्रीम को हम बिल्कुल ऐसे ही क्या करते हैं और उसमें जो भी मिक्सअप करना होता है और वो सभी को हम क्या कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। और मिक्सअप करने के बाद फिर एक पास्चराइज्ड एंड डिस्ट्रॉय वाली कंडीशन में लेके आते हैं, मतलब उसको थोड़ा ज़्यादा समय हम क्या करते हैं और चूल्हा में बिठाते हैं। और चूल्हा में बिठाने से क्या होता है कि उसका जम वगैरह मर जाता है। मरने के बाद उसको फिर उसी लेवल में हम क्या करते हैं, उसको पैक करते हैं, यानी आइसक्रीम करने के लिए हम उसे पैक करते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो आइसक्रीम का जो स्मूथनेस वो थोड़ा और अच्छा रहता है। द मिल्क पार्ट इज ब्रोकन इनटू टिनी पीसेस, पार्टिकल्स मिल्क है और मिल्क का जो क्या कह सकते क्रीम है उसको बहुत ही छोटे छोटे कण में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होमोनाइजेशन। इस प्रोसेस को होमोनाइजेशन कहा जाता है। द टोटल मिक्सचर इज देन कूल्ड एंड पुट इनटू द स्टीर इनसाइड द फ्रीजर। द आइसक्रीम मिक्सचर हैज टू बी स्ट्राइप्ड एट ऑल द टाइम। तो इसी प्रकार से जो फ्लेवर को, मिल्क को और ये सभी को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद
आग में थोड़ा लंबा समय के लिए उसको उबाला जाता है। तो इससे ये करने के द्वारा क्या होता है कि मतलब उसमें जो कीटाणु वगैरह होते हैं या तो फिर कोई बैक्टीरिया वगैरह होता है तो वो सभी क्या हो जाते हैं, मर जाते थे। और उसके बाद उसको सुइटेबल मतलब वो होता था और तभी वो क्या करते थे, उसको आइसक्रीम बनाने के लिए रखते थे। This done by very first rotting paddles. The mixture nearest to the site of the country has to be beaten, break into the rest of the mixture. Thus, the whole mass gets frozen. Uniformly, the mixture started to freeze at about -2 डिग्री सेल्सियस। तो आइसक्रीम को अगर बनाना है तो लगभग यहाँ पे जो उसका जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस करते समय यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि -2 डिग्री सेल्सियस में वो होनी चाहिए। और उसके साथ वाइल द आइसक्रीम इज सॉफ्ट, और जबकि आइसक्रीम जो बिल्कुल सॉफ्ट थी, इट इज शेप्ड इनटू बार्स, और वो बार्स में वो कन्वर्ट होती है। और कन्वर्ट होने के बाद फिर उसके बाद उसका साइज को तय किया जाता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, वाइल द आइसक्रीम इज सॉफ्ट, जैसे कि आइसक्रीम सॉफ्ट है, जबकि आइसक्रीम सॉफ्ट है। इट इज शेप्ड लाइक बार्स, और ये तो एक बार के जैसा उसका शेप होता है। इट कैन बी कोटेड विथ चॉकलेट और अदर फ्लावर, तो उसी जो बार टाइप के जो आइसक्रीम दिखता है उसके ऊपर चॉकलेट फ्लावर को भी क्या कर सकते हैं, हम डाल सकते हैं, और वो और भी स्वीट लगेगा। इट इज़ देन पैकेज इनटू कार्टून और ओके। देन उसके बाद फिर क्या होता है कि वो कार्टून में उसको पैक करते हैं, और पैक करने के बाद लगभग 6 महीने तक, जब तक ये एक्सपोर्ट नहीं हो तब तक के लिए इसको 23 डिग्री सेल्सियस वाली जो मतलब रूम है माइनस, तो इसी प्रकार का रूम में भी इसको किया जाता है। और मतलब कुछ 6 आवर के लिए रखे जाते हैं, जैसे डिलीवरी होने से पहले तक के समय तक के लिए रखे जाते, ताकि ये और भी कड़क हो जाए और बिल्कुल अपना वक्त आने के बाद ही पिघल सकेगा। आइसक्रीम लवर कैन ऑल्सो मेक देयर ओन एट होम। बच्चे तो अधिकतर बड़े उस्ताद है, अगर उसको कहेंगे कि भाई आइसक्रीम बनाओ तो तुरंत एक कप ले लेंगे, उसमें पानी डाल देंगे, मिल्क डाल देंगे और अगर वगैरह जो भी कुछ डाल करके फ्रिज का जो डिपर है और वहीं पे क्या कर लेते हैं, उसको रख लेते हैं। जैसे वहाँ पे उसको रख लेते हैं, रखने के बाद ये कड़क बन जाता है और बड़ी खुशी के साथ आइसक्रीम को बच्चे भी खा लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमने आज देखा कि आइसक्रीम का वास्तव शुरुआत कहाँ से होता है, उसको किन किन नामों से पुकारा जाता है और कितने लंबे समय के बाद ये आइसक्रीम जो है बिल्कुल पॉपुलर हो जाता है। और पॉपुलर ही नहीं बल्कि सबके द्वारा ये इस्तेमाल किया जाता है। A wrapper of ice cream can be made using the ordinary home freezer। आइसक्रीम को जो घर पे जो ऑर्डिनरी फ्रीजर होता है उसी से भी क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है ना, उसको बनाया जा सकता है। द मिक्सचर इज फर्स्ट पार्शियली फ्रोजन इन ए ट्रे। जो मिक्सचर होता है उसको कुछ समय के लिए क्या कर दो, आप फ्रोजन कर दो, यानी बर्फीला कर दो। Then it is taken out and beaten into the large lumps of ice crystal are not formed. The mixture is the frozen and the coldest setting. So last paragraph. It is important to remember that ice cream, like other dairies products, and should be earned soon after it
had been made, otherwise bacteria will grow rapidly and make the product unhealthy. आइसक्रीम जैसे हम लेके आते हैं तो तुरंत की तुरंत उसको क्या कर लेना चाहिए, इस्तेमाल कर लेना चाहिए. As long as we bring ice cream and so immediately we supposed to eat that okay, otherwise what will happen, the harmful bacteria that would be enter to the ice cream. Okay, may God bless you. I hope you have understood or I tried to speak you. Okay, thank you. May God bless you.